evening, everybody. As you have seen, Viking Ventures and the most important amongst all lines that really keeps me going is that we've just started. As you all rightly know, we have a diversified interest in various areas. जिस तरह आप लोगों ने देखा कि alcohol is something that we've just ventured in. और it's very important कि life में आपको क्या करना है, I mean क्या हासिल करना है. I mean the most important thing that keeps me going is my passion towards building businesses, running different businesses, and the aim that I have started off, and because we are a large country, India, you know, we have to contribute a bit to the society, to the people, to the world. मेरा एक सोचना है कि सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू अगर 100,000 फैमिलीज मतलब 1 लाख फैमिली वाइकिंग के लिए जिस दिन काम करेगी, आई थिंक दैट इज द डे आई विल बी हैप्पी. सो दैट इज द एम दैट कीप्स मी ड्राइविंग टुवर्ड्स दिस गोल. एंड similarly in all the businesses, I think I've just reached to the fraction. Today we have nearly 5,000 families working along directly, indirectly with Viking as a company. So I won't take much of your time. Abhi hum log yahan aaye hain for the launch of our new vertical in the alcohol segment. We are here to launch the brand Royal Oak, and as rightly said, it's always a team effort, and I think भले ही आप हमारी interaction ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आप लोग यहाँ हैं, I feel and I consider you are also a part of my team to the growth and to the success. Thank you all very much for coming here and gracing the occasion. Thank you. Has been worked upon with a lot of detail. Especially अगर आप Royal Oak को देखेंगे, it is blended whiskey. It is not from Scotland, but you know माना जाता है कि अगर whiskey हो तो Scotland से होनी चाहिए. But I don't feel like that. I think हमारे homegrown मतलब इंडिया में भी इतना talent है, इतनी ताकत है, इतने अच्छे blenders हैं कि वो इंडिया में भी अच्छी whiskey बना सकते हैं. So Royal Oak की एक और जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, it has oaks, it has been barreled, it has whiskey which has a blend of 28-year-old whiskey as well. तो ये एक खाली एक alcohol based product नहीं है, इसमें जो blends हमने use किए हुए हैं 28 साल पुराना भी है, 7 साल पुराना भी है और 3 साल पुराना है. तो इसको एक perfect blend हमारे blender ने इसको बनाया है. And it is none other than Vijay Montecruz. He's here. So I would like him to come and talk about Royal Oak more in detail of how this brand has eventually come. See, for us, it's very clear that Royal Oak, it's a flagship brand, but at the end, अगर कोई चीज़ बिक सकती है दुनिया में तो वो सिर्फ क्वालिटी होती है. So that is what we have really worked upon. आप सभी लोगों को इसकी सैम्पलिंग होगी, आप देखिए. And for me, the first view is most important with our trade partners. आप लोग सभी लोग यहाँ हैं. It would be nice to know more about the brand. Come, Vijay. Basically, this Royal Oak
it has taken us almost a year to develop the blend. We had given so many samples to Sachin Joshi, but as time went, he kept on rejecting a lot of the blends that we made for him. But finally, when we were sitting in Planet Hollywood, he liked one blend that we had made for him, which was mixed with, as he said, 28 years old plus 3 years old. And basically, I'll just tell you a few things about this blend. We have matured this malt over a period of time for 28 years. फिर आदमी की औकात बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, जेब में आता है, then he starts upbringing his standard. वो कुछ लोग तो फिर 4 लोगों को दिखाने के लिए भी पीते हैं कि कौन सी विस्की पी रहा हूँ. हकीकत यही है. So आपने ओबान पिया, ओबान क्यों पिया? You know, one of the reasons I experiment a lot with my whiskeys. So what I look in a whiskey is the smoothness in the whiskey, the smoothness of the whiskey, and even the color of the whiskey. So that's how I judge my whiskeys. The 2 good parameters, the taste, the smoothness, and you're talking about the color. आप भी इसी के लिए पीते होंगे? भी whiskey, हाँ. So is Nihar here or is he left? एक हैं जो directly बेचते हैं. और हकीकत यही है, and I'm a bartender. So we are 3 people done. Anybody else who would like to come and join me for the whiskey tasting? आइए sir, आइए please. Okay, now's the time to get whiskey. Look at the color. Color आपको क्या दिखता है? Color में क्या है? कौन सा color है? Whiskey जैसा color तो है ही. पर इस color को नाम क्या दे सकते हैं हम? We call it golden. So we calling it golden, yeah? It's hues of gold and hay, amber. So we are talking about golden. So color is already there. आपको लगता है ये अच्छा color है whiskey के लिए? हाँ, color अच्छा है, देखने में सुंदर है. Okay, now फाइन वो क्या है? क्या वो हनी है? क्या वो वुड है? क्या वो स्मोक है? वो क्या है? आपको क्या लगता है? Sweet. You find a sweetness. सर आपको क्या लगा? Yeah, I didn't drink it because I have to drive. No, because I have to drive. The smell is very nice, yeah. Sexy. Yeah. इसके बारे में First of all, what makes you keep going further and further with so many brilliant ideas? You're an actor, you're a sports person, a businessman, an entrepreneur. So what keeps you going all the time, and what is it? I think achieving the impossible makes me going, and even as I mean, it's a very cliche thing to say, but even impossible says I am possible. So it's just the passion that keeps me driving towards achieving something that not many can. I mean, I believe everybody can achieve. अगर आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है. So that's important. Passion to drive. Absolutely, passion. And sir, one thing that you'd like to advise maybe that you'd like to give to all the young entrepreneurs, a lot of young people over here who have recently started in their line of business. So that what is that one advice you'd like to give to all the young entrepreneurs over there, since you are a role model for a lot of them? देखिए business के success के लिए it's very important. Any business for that matter, चाहे आप आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो या बिजनेस में हो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दें. जो भी आपका प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका टैलेंट हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई भी इंडस्ट्री हो, आप अपने प्रोडक्ट को जब तक बेस्ट नहीं बनाएंगे, जब तक उसकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए उस बिजनेस की. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर प्रोडक्ट as your primary most objective. क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट
पैसा कमाना बन गया तो प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाएगा. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि पहले आप प्रोडक्ट बनाइए और फिर उसका बाय प्रोडक्ट उसकी सक्सेस आपको मिलेगी. Absolutely, and since you're already talking about the product, so it's not just one product, but I believe there's one more surprise that we have for everybody over here. So would you like to tell us something about it? Well, as you all know, we've ventured into alcohol business. और जिस तरह हमने शुरुआत बियर से की थी, बियर से भी पहले एक्चुअली बेवरेज कैटेगरी में हमने सबसे पहले पानी लाया, फिर एनर्जी ड्रिंक लाया, फिर उसके बाद अल्कोहल में डाइवर्सिफाई करते ही हमने बियर में डाइवर्सिफाई किया सबसे पहले. वी गॉट 2 ब्रांड्स, की ब्रांड्स. इंटरनेशनल मार्केट में गोवा बियर के नाम से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इंडिया में हम गोवा किंग्स के नाम से अवेलेबल है. उसके अलावा वी स्टार्टेड इन RTD, मतलब रेडी टू ड्रिंक वोडका मिक्स, जिसके लिए हमने सोर्स वोडका इंटरनेशनली पोलिश वोडका को इंपोर्ट किया. एंड आपने देखा रॉयल ओक, काफ़ी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं. विस्की, रम, सिंगल मॉल्ट, देन देयर इज़ ब्रांडी, सारे डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजर रहे हैं. तो आज हम यहाँ हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रॉयल ओक. And the single malt is the next in pipeline. We are in the final stages of preparing the single malt. क्योंकि the alcohol industry इतनी तेज़ी से expand कर रही है, मतलब एक path breaking situation बन गई है पूरी दुनिया में. अगर आप alcohol को देखेंगे कि पहले माना जाता था कि खाली आप वाइन पिएंगे तो फ्रांस से पिएंगे, तो आज की तारीख में आप नापा वैली कैलिफोर्निया में, अमेरिका में बहुत तेज़ी से उसका चलन बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड वाइड. पहले ये था कि अगर आप विस्की पिएंगे तो सिर्फ स्कॉच पिएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह जापानीज़ विस्कीज़ दुनिया में प्रोग्रेस कर रही है या इंडियन विस्कीज़ जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, सो देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज़ चल सकती है. सिमिलरली वी हैव पुट इन एन एफर्ट, अ सिंसियर एफर्ट टू मेक अ सिंगल मॉल्ट. सिंगल मॉल्ट में आप में से कितने लोग जानते हैं द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट विस्कीज़? Except for Mr. Sandeep, I would like to ask a lot of people, because I'm sure he knows. आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि सिंगल मॉल्ट क्या है, स्कॉच क्या है, ब्लेंडेड विस्की क्या है, ब्लेंड क्या है? आप लोग में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं? Can we have some hands up in the air? Nobody. Okay, so किसी को भी नहीं. Okay, we have one person over there who knows about it. Can you come on stage so we can interact over it? So please. तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप जानेंगे तो उसका मज़ा और बेहतर होगा. Hello. Yeah. Hi. So tell me, क्या आपकी knowledge विस्की के बारे में? So, okay, first, of course, I'm not a distributor, not a manufacturer. I'm a journalist. Oh, Uh, चलिए, even better. Right source of I information. write for media rather than whiskey, but so single malt is basically a single base, while blended is mix of a multiple base, barley and some other grains and some other Single grain of what? single grain. Single what? So the grain, if you're say using or the ठीक है. तो मैं आपको सिंगल मॉल्ट के बारे में बता दूं. सिंगल मॉल्ट जो इलाका होता है, किसी भी इलाके में, जिस भी इलाके में आपके मॉल्ट पैदा होता है, तो सिंगल मॉल्ट उस ग्रेन से बनता है जो उस इलाके का ग्रेन हो. एक इलाके का जो ग्रेन होता है उससे सिंगल मॉल्ट बनती है, इसलिए उसको सिंगल मॉल्ट कहा जाता है. और जब आप उसको कहते हैं ब्लेंड, जब ब्लेंड बोलते हैं तो ब्लेंड मतलब खाली एक ही ग्रेन, मतलब एक ही खेत का जो ग्रेन उगता है उसको सिंगल ग्रेन बोलते हैं, उसको ब्लेंड लिखा जाता है नीचे. और जब आपके मल्टीपल पूरे रीजन में अलग अलग खेतियों से जब आप मंगाते हो और फिर उसमें से जब मॉल्ट बनता है तो उसको ब्लेंडेड विस्की कहा जाता है. सो ब्लेंड, सिंगल ग्रेन, सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड, ये कई प्रकार के विस्कीज होते हैं. तो ये जानना ज़रूरी है, खास करके हमारे इंडिया में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हम समझते हैं सीधा है कि अगर स्कॉच है तो सबसे बेस्ट होगा. ज़रूरी नहीं है. आप कहीं से भी विस्की बना सकते हैं, अच्छी विस्की बना सकते हैं. आपका मॉल्ट का सिलेक्शन सही होना ज़रूरी है.
जिस तरह हमने संदीप जी ने कहा, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, पानी का बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, और सही पानी का सबसे ज़्यादा रोल होता है विद अ सिंगल मॉल्ट। तो वो खासियत हमारे इस अगले जो भी प्रोडक्ट लॉन्च में आप जाहिर सी बात है आपके सामने लॉन्च करेंगे, बट सिंगल मॉल्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड गोवा इसलिए क्योंकि उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी का रेशियो जो है, समुंदर के पानी की जो वो पानी जब ट्रिकल होके जब खेतों में आता है और वहाँ से जो पानी निकलता है, तो उसका ब्लेंड, ये सारी चीज़ों का कंबाइन करके वो जो रिवर की बात की थी हमने, जो हमारे फैक्ट्री के साथ ही चल रही है, तो वो पानी से सिंगल मॉल्ट को हमने प्रोसेस किया है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आई बिलीव इज गोइंग टू बी द सक्सेस ऑफ माई सिंगल मॉल्ट। Right, sir. आप सभी लोग सोच रहे होंगे मतलब साधु किस प्रकार का नाम है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको नाम के बारे में बताना चाहूँगा। साधु ये नाम इसलिए रखा गया है कि साधु का मतलब क्या है, एक नोबल कॉज होता है उसका, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसको मोह माया से वो दूर रहता है। तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत अलग किस्म की होती है। ही इज़ नॉट, मतलब हमारी तरह नहीं है कि हम बिजनेस करेंगे, हम ब्रांड्स बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक साधु, एक जेन्युइन सोल को साधु कहा जाता है। मतलब एक जेन्युइन सोल एक बॉडी के शेप में, बॉडी के आकार में होता है, उसको साधु कहा जाता है। तो मेरे लिए मतलब इसके कई मतलब निकल सकते हैं। लोग अक्सर हमारी खासियत है हिंदुस्तान में, हम कई चीज़ों के कई मतलब निकालते हैं, लेकिन मेरा मतलब जो इसकी डिक्शनरी में साफ शब्दों में जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जानकारी ली है, कि साधु एक जेन्युइन सोल को साधु कहा जाता है। संत अलग हो जाता है, साधु अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमने एक सेज को एक प्रक्रिया दिया है, और सिंगल मॉल्ट का नाम, क्योंकि एक इंडियननेस भी आना चाहिए, एक इंडियन फ्लेवर भी आना चाहिए, और मैं ये ग्लोबल मार्केट के लिए ये प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहा हूँ, इसलिए इसका नाम साधु है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks a lot. ब्रांड है विस्की के, तो आपको क्यों लगा एक नया ब्रांड की जरूरत है और क्यों इसे पसंद करें? देखिए, ज़रूरत की बात नहीं होती है। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई बिजनेस, वट एवर आई डू। आई मीन, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, जो भी हो, आई वुड लाइक टू डू इट पैशनेटली, एंड दैट्स हाउ आई बीन डूइंग। तो वही एक रीज़न रहा कि अल्कोहल में वेंचर कर ही लिया था, तो ब्रांड को एक्सपांड करने के लिए, मतलब ब्रांड पोर्टफोलियो एक्सपांड करने के लिए आज हम लोग यहाँ विस्की लॉन्च करने के लिए आए। सर, इस विस्की के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बताइए। देखिए, रॉयल ओक एक बहुत ही खास प्रिपरेशन से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें कई किस्म के मॉल्ट है, क्योंकि ब्लेंडेड विस्की है। रॉयल ओक में 28 साल पुराना भी मॉल्ट है, जिसमें 7 साल पुराना भी मॉल्ट है, और साथ ही में इसको ब्लेंड किया गया एक यूनिक पानी के साथ जो गोवा में ब्लेंड हो रहा है। और काफ़ी मेहनत गई है, लगभग 3 साल इसमें लग गए इसको प्रिपेयर करके फाइनली मार्केट के लिए लाने के लिए। और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड इट्स गोइंग टू बी इन दैट प्राइस सेगमेंट के जो अफोर्डेबल भी हो, और साथ ही में आपको जितने आपकी इच्छाएं हैं प्रोडक्ट के थ्रू या विस्की के थ्रू जो चाहिए इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सके। देखिए, रॉयल ओक विस्की की एक खासियत है कि वो ओक बैरल में मैच्योर किया जाता है। तो ओक एक हमेशा एक सिनोनिमस नाम रहा है, और रॉयल्टी, मुझे रॉयल एक वर्ड हमेशा अच्छा लगता था, तो दोनों को कंबाइन करके रॉयल ओक क्रिएट हुआ। प्राइस कितना है? प्राइस जैसे मैंने कहा अफोर्डेबल सेगमेंट में है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एट 1040 रुपीज़ फॉर द महाराष्ट्र मार्केट। सचिन, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो किंगफिशर विला जो आपने खरीदा है, उसको क्या कुछ स्टेटस है उसका, और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ प्लान होंगे? फिलहाल अभी रेनोवेशन चालू हुआ है, लगभग प्लानिंग स्टेज में था 4-5 महीने से, और अब उसका रेनोवेशन मैंने स्टार्ट किया। फ़िलहाल वो मेरा घर है, प्राइवेट रेसिडेंस है,
और जल्दी ही उसका नामकरण की सेरेमनी एक होने वाली है बहुत जल्द, तो आई थिंक तब मैं इसके बारे में चर्चा करूँ तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारी जगहों पर आपका बिजनेस है, कई सारी जगहों पर ऐसी भी बातें होती हैं कि क्या आईपीएल में भी आप कुछ ऐसा मतलब फ्रेंचाइजी या आप कैसा कुछ आजमाएंगे, क्योंकि आई थिंक बहुत प्रीमेच्योर होगा मैं कोई भी कमेंट करूं। देखिए क्रिकेट एक किस्म का रिलीजन ही है हमारे देश में, सिनेमा भी है, तो सिनेमा में तो वेंचर हमने कर ही लिया है, अल्कोहल की इंडस्ट्री में क्रिकेट। आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, तो अगर मौका मिलेगा तो फ्यूचर में आईपीएल में भी आजमाएंगे। कोई बॉलीवुड ये बहुत जल्द आई थिंक इसी हफ्ते से ये मार्केट में लॉन्च होगा। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आप इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे आपके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, कई सारे के साथ आपने काम भी किया है, तो आप बताइए। फ़िलहाल ऐसी कोई सोच नहीं है। आई थिंक पहले प्रोडक्ट अपने आप में हीरो रहता है, प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि मार्केट में आए, पहले लोगों को जो हमारी इच्छा है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हर प्रोडक्ट में दें, इसी तरह रॉयल ओक की भी हमारी वो कोशिश है। इवेंचुअली प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा, फिर उसकी प्रोग्रेस के लिए मैं समझता हूँ ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत होती है। फ्रेंचाइजी के अलावा प्ले बॉय का ये जो सेगमेंट है आपका, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? प्ले बॉय एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अभी हाल ही में हमने मतलब इंडिया का जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वो मेरे पास कम्प्लीटली हमने टेक ओवर किया है। प्ले बॉय एक कई किस्म की सोच लोगों में आती है, बट ऑनेस्टली हमारा सेगमेंट और टारगेट F&B है, मतलब फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे कई फॉर्मेट्स है। क्लब शायद कल ही एक इवेंट में हॉस्पिटैलिटी इवेंट में वी गॉट द नाइट क्लब ऑफ द ईयर। बॉम्बे का जो प्ले बॉय नाइट क्लब है उसको अवार्ड मिला है, और साथ ही में प्ले बॉय बियर गार्डन है, प्ले बॉय कैफ़ेज़ हैं, तो हम उस फॉर्मेट पे वहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। सचिन जी, लीकर इंडस्ट्री में विजय माल्या काफ़ी स्टाइलिश माने जाते थे और आप भी काफ़ी स्टाइलिश हैं, तो विजय माल्या और किंगफिशर विला जो आपने खरीदा है, किंगफिशर विला खासतौर पर, क्या ऐसा लगा आपको कि मुझे ही वो विला खरीदना है, या क्यों इतना इच्छा किया? देखिए मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। लाइक एवरीबडी एल्स मैंने भी उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी। एक बार जाके भी आया हूँ मैं पहले, बहुत पहले, आई थिंक 2003-4 के आसपास। और जब मैंने देखा कि ये ऑक्शन हो रहा है, कोई ले नहीं रहा है, क्या रीज़न है, व्हेन आई रियलाइज, तो काफ़ी अड़चने थी, बट फाइनली मैंने मेहनत की और मुझे मिल गया। सचिन जी, एक आखिरी सवाल हम मीडिया की तरफ से कि इन सारी चीज़ों के अलावा एक नन्हा पर रिश्ता आपके घर आने वाला है, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इन सारी चीज़ों को? आई थिंक लाइफ में उससे बढ़ के और कोई खुशी हो नहीं सकती। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक अनदर कपल ऑफ मंथ्स, बहुत जल्दी मेरा एक नया फैमिली मेम्बर जुड़ने वाला है, बहुत खुशी है। वेट कर रहा हूँ, बहुत उत्सुक हूँ अपने जो भी लड़का लड़की जो भी हो उसको देखने के लिए। क्या आने वाली कोई फिल्म भी आपकी आने वाली है? यस, अभी मैं नवंबर में शूट कर रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छी फिल्म के साथ आई विल बी कमिंग है। रोमांस करते हुए दिखाई देंगे, थ्रिलर, एक्शन, किस आप दिखाई देंगे? फिलहाल जॉनर जो मैंने अभी पिकअप किया है थ्रिलिंग हॉरर फिल्म है, हॉरर थ्रिलिंग फिल्म है। लव स्टोरी का एक अपना ही एक चैप्टर होता है, क्योंकि इंडिया की हॉरर एक फिल्म जो होती है वो थोड़ा अपना ही एक अंदाज़ होता है हिंदुस्तान में, तो उसी स्पेस में है और बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट है, तो शायद हम दूसरे दिन के लिए रखते हैं इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।